There's some big breaking news coming in. Amid buzz of joining the BJP, Champai Soren has landed in Delhi. Champai remains tight-lipped, says he's here for some personal work. He further says, I keep coming to Delhi. But sources tell us that Champai is in touch with Suvendu and Shivraj. Take a listen. दिल्ली आना जाना होते रहता है। आज भी हम आए हैं, अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है जी। है ना। हाँ। और अपना निजी काम में हम दिल्ली आए। सर, एक बड़े नेता है आप, आदिवासी, आपको हटाया गया, क्या आपकी नाराजगी है हेमंत सोरेन से या जेएमएम से? आपको लगता है कि नहीं हटाना चाहिए था, चुनाव आपके उसमें होना चाहिए था? जी सर। आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना जी सर, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया, हम निजी काम के लिए काम में आए हैं और हम जहाँ पर है वहीं पर है। कलकत्ता आप चंपई साहब, कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी? ये नहीं, हम अभी किसी से मुलाकात नहीं हुआ। मुलाकात का टाइम है, बीजेपी के नेताओं से मिलेंगे। जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? बताया जा रहा है शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात हुई। हम भी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम। चंपा जी, एक सवाल क्या आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे या आगे की बात हो सकती है? आप क्या रहेंगे कि ये सवाल है, आप ऐसे ही सवाल करता है भाई। हम बोल दे जहाँ पर है वहीं पर हम है। Amit Bhardwaj is joining us live on the broadcast for more on this. Amit, as we can see, Champai Soren is tight-lipped on the rumours of him joining the BJP. He just said he's here for some personal work. What can you tell us about that? Well, Chitra, ever since this morning, we have been telling our viewers that, Champai Soren is coming to the national capital. That news has been confirmed. He did take AI 769 flight from Kolkata. Our sources had confirmed us that he was at a Kolkata hotel last night where he had met Suvendu Adhikari of the Bharatiya Janata Party. Now, when he was asked about this question, Champai Soren has not commented on that question, and he continues to maintain that he is in the national capital for personal reasons and that हम वहीं रहेंगे जहां हम हैं, which is essentially meaning that he's claiming that he'll continue to be with the Jharkhand Mukti Morcha. And even in Ranchi right now, the JMM leadership is maintaining that they believe that Champai Soren will not abandon the party. He has been a long-standing comrade of Shibu Soren and that he will not ditch the party at this point in time when the elections are there. But the sources do indicate, as Chetna, that this is not a personal visit. There's a political motive behind Champai Soren's, visit to the national capital. And I'm telling you on the basis of the top sources within the Jharkhand Mukti Morcha. This morning I was informed by through these sources as to how Champai Soren traveled to Kolkata, stayed at a Kolkata hotel. Those details were confirmed through other sources as well. He met Suvendu Adhikari, sources are telling us as well. And now he's in the national capital. And remember, I was telling you, it is not clear as to whether other MLAs of the Mahagathbandhan government will be accompanying him or not. But definitely he has been in a very influential position in the past 6 months, especially when he was made Chief Minister of the state by Hemant Soren. So clearly he might have influence on certain MLAs. The JMM, however, maintains that there's no, crack in the party or Mahagathbandhan government so far. But definitely Champai Soren, the sources are indicating at a political motive of Champai Soren's Delhi visit. The sources continue to tell us that he is seeking meeting with the top leadership of Bharatiya Janata Party. Now, all that depends on what is on the platter, because somebody of stature of Champai Soren will be looking definitely for a more concrete offer from Bharatiya Janata Party. Maybe the CM face assurance from the BJP, will that do, or something else? Because until unless there is a concrete offer from the BJP, you will not see the ships, Champai Soren shifting or jumping the ship from the JMM Mahagathbandhan
to the Bharatiya Janata Party. But certainly, we remember when Sita Soren was also in Delhi, Sita Soren had maintained that she was in the national capital for her personal reasons to meet her daughters. But eventually, she did join the BJP ahead of the Lok Sabha elections, and she had contested from Shibu Soren's bastion, Dumka Lok Sabha constituency. Constituency was represented by Shibu Soren himself, the JMM patriarch. So even then, we had seen as to how Sita Soren had joined the BJP despite maintaining that she was in Delhi for personal reasons. A similar reason is being cited by Champai Soren. Right, Amit, we'll come back to you for more on this. We have JMM MLA Sameer Mohanty joining us live on the broadcast. Sir, रूमर्स है कि चंपई सोरेन बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में? धन्यवाद। लेकिन हम तो कई बार इस बीच हम लोग का ऐसे बात हुआ है, लेकिन पार्टी छोड़ने का, बीजेपी में ज्वाइन करने का ऐसा कोई चंपैदा से बात नहीं हुआ है। और हमको हम बता देना चाहते हैं, चंपैदा भी इस पार्टी का एक बुनियाद के रूप में ही थे और पार्टी में काफी सम्मान उनको दिया जाता है, सम्मानित व्यक्ति है। हमको नहीं लगता कि चंपैदा भी इस तरह का कोई निर्णय अभी लेंगे। जी, आपका भी नाम आ रहा है कि जेएमएम टॉप लीडरशिप आपसे कांटेक्ट में नहीं आ पा रही है, तो उस पे आपका क्या कहना है? नहीं, हम तो अपना विधानसभा के अपना ऑफिस में भी कार्यालय में बैठे हुए हैं, लोगों का काम कार्य देख रहे हैं और हमको अभी तक ना वैसा कोई प्रस्ताव आया है, ना कभी हम इस तरह का सोचे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा मेरा राजनीतिक जन्म हुआ है झारखंड मुक्ति मोर्चा में। मेरा राजनीतिक पाठशाला झारखंड मुक्ति मोर्चा है। मेरा राजनीतिक गुरु देशम गुरु शिबू सोरेन है, उनके नेतृत्व में ही हम पार्टी में आए हैं और पार्टी अभी तक हमको काफी सम्मान दिया है, इसलिए इस तरह का झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं। जी, हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं, जी बोलिए। जी हाँ, बोलिए। हाँ, हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि चंपई सोरेन शुभेंदु अधिकारी और शिवराज चौहान के साथ टच में है, तो झारखंड पोस्ट से पहले ये क्या रंबलिंग्स है? नहीं, ऐसा कोई खबर सूचना हमको नहीं है। चंपैदा के बारे में ऐसा कोई खबर नहीं है। बड़े नेता है, सम्मानित व्यक्ति है, क्षेत्र में का लोकप्रियता है और पार्टी की बुनियाद है। हमको नहीं लगता है कि चंपैदा भी इस तरह का कोई निर्णय लेंगे। जी, हेमंत सोरेन के आते ही चंपई सोरेन को हटा दिया गया चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से, तो क्या ये जो एक्शन है उनका दिल्ली आना, क्या ये बेसिकली उनका रिएक्शन है? देखिए, चंपई सोरेन हम आज भी बोले कि बड़ा नेता है, उनको पार्टी आने का बात बोले उनको बैठाए कौन? वही हेमंत सोरेन है तो उनको कुर्सी में बैठे हैं, उनके पास और भी ऑप्शन था। लेकिन पार्टी का बड़ा नेता, अच्छे नेता और विश्वासी है, उसी सबके कारण ही चंपैदा को उस समय सीएम बनाए गए थे। और पार्टी का एक पार्टी का बात नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ और भी राजनीतिक दल का गठबंधन है और क्या परिस्थिति में ये पार्टी का निर्णय हुआ है। पार्टी हमेशा पार्टी का हित और झारखंड का हित चाहते हैं, झारखंड का भला चाहते हैं, इसलिए उस विषय पर हम लोग को इस तरह का कोई जानकारी नहीं। पार्टी जो भी निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है, हम स्वागत किया। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए समीर जी। थैंक यू। Champai Soren refutes claims. Amid speculation of him joining the Saffron clan, JMM loyalist arrived in Delhi today and denied reports, claiming his visit is for personal reasons and asserted his loyalty to the Sorens. However, sources suggest that Shibu Soren's close aide is rumoured to be considered a switch to the BJP. He is frequently in contact with the BJP leader and Union Minister Shivraj Singh Chauhan. He may also be accompanied by 6 MLAs who are currently out of reach. Recent reports also indicated that Champai Soren met BJP leader Subhendu Adhikari in Kolkata. Remember, Champai briefly served as Jharkhand Chief Minister following Hemant Soren's resignation amid a money laundering scandal. This potential defection could be a serious blow to JMM as the elections draw near. अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है। आज भी हम आए हैं, अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है। जी, है ना? हाँ। और अपना निजी काम में हम दिल्ली आए। सर, एक बड़े नेता है आप, आदिवासी, आपको हटाया गया, क्या आपकी नाराजगी है हेमंत सोरेन से या जेएमएम से? आपको लगता है कि नहीं हटाना चाहिए था, चुनाव आपके उसमें होना चाहिए था? जी सर। आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहे हैं ना, जी सर, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया, हम निजी काम के लिए काम में आए हैं। हाँ। और
हम जहाँ पर है वहीं पर है। कलकत्ता आप चंपई साहब कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी? ये नहीं, हमें भी किसी से मुलाकात नहीं हुआ। जब हमारा कार्यक्रम में हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? बताया जा रहा है शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात हुई। देखिए हमें भी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम। चंपा जी एक सवाल क्या आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे या आगे की बात हो सकती है? आप कह रहे हैं क्या रहेंगे कि ये सवाल है, आप ऐसे ही सवाल करता है भाई। हम बोल दे जहाँ पर है वहीं पर हम है। जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट चंपई दा का नहीं आ जाए या कुछ वीडियो कुछ ऑडियो वैसा आए जिससे कि ये प्रमाणित हो कि उन्होंने पार्टी को छोड़ के भाजपा में जाने का मन बना लिया, तब तक मैं यकीन नहीं कर सकता। तो चूंकि चंपई दा एक आंदोलनकारी रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो नाखुश थे। मुख्यमंत्री पद उनको दे के जब जेल की बात जाने की हुई तो उतना बड़ा विश्वास अपने अभिभावक पर हेमंत जी ने किया था। चंपई बाबू को दिग्भ्रमित करने का प्रयास भले ही विपक्षी कर रहे होंगे, लेकिन उनके झांसे में वो नहीं आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हम लोग जानते हैं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पार्टी के प्रति शुरू से समर्पित रहे हैं। जब हम लोग बिहार में विधायक थे तो हम लोग साथ काम किए हैं और वे सब दिन वह कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं। ये अफवाहें भारतीय जनता पार्टी क्यों फैला रही है? क्योंकि उन्हें अपना हार का भय सामने दिख रहा है, इसलिए रोज कुछ न कुछ र्यूमर मॉन्गरिंग, अफवाह फैलाना उनका ये पुराना पेशा है, आज का तो है नहीं। चंपई सोरेन बहुत ऑनेस्ट और जनाधार वाले और खबर में क्या सच्चाई हमको नहीं पता, किंतु इतना तो है कि चंपई सोरेन बहुत अच्छे राजनेता और उनको गद्दी से उतारना लोकतंत्र में अच्छा नहीं। उन्होंने जो 4-5 महीने काम किए तो किसी से विद्वेष की भावना से उन्होंने काम नहीं किया, जो भी गया खुशी से मिले और काम किया। चंपई सोरेन ऑनेस्ट एक मास लीडर है। चंपई जी झारखंड आंदोलन का एक बहुत बड़ा नेता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन से भी उनका अधिकार ज्यादा है, इसलिए वो शिबू सोरेन जी का साथ एक साथ लड़ा था। मैं तो ये चाहता हूँ कि चंपई सोरेन जी का जो उनका जो व्यक्तित्व है, हमें ये सब क्वेश्चन करके उनका व्यक्तित्व को हम निश्चय नहीं करना चाहिए। कोई राजनीति में कोई व्यक्ति को हम छोड़ देना चाहिए कि भाई उनका ऊपर हम टिप्पणी नहीं करूंगा। जो रास्ता है वो रास्ता खुद लेने का वो समर्थ है, हमारा कोई समर्थन इसको नहीं चाहिए। झारखंड का 3.5 करोड़ जनता उनके कामों से खुश था। उन्होंने प्रशंसनीय काम किया था, उल्लेखनीय काम किया था और जिसके कायल झारखंड के एक लोग रहे। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार से उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण था और वास्तव में हम सब लोगों के लिए एक सेटबैक भी था कि एक अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री के रूप में क्यों हटाया गया, क्या दोष था उनका। ये बातें हम सब लोगों को चुभती